आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ खास खबरों पर। मरकजी ममलिकत वजीर दाखिला किशन रेड्डी ने गांधी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस तरह के प्लांट किंगकोटी और गच्चीबौली अस्पताल में कायम करने के बाद रियासत के हर जिले के सरकारी दवाखाने में ऑक्सीजन प्लांट्स कायम करने के इकदाम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि गांधी हॉस्पिटल की लाइब्रेरी में कोरोना के मरीजों का इलाज करने के लिए 300 बेड्स की सहूलत फराहम करने के इकदाम किए जाएंगे। उन्होंने रियासत की हुकूमत से अपील की कि वो फौरी तौर पर वेंटिलेटर्स, टेक्नीशियन और डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ के तकर्रुरात अमल में लाए। साबिक वजीर सैयद इटला राजेंद्र मीडिया से बात करते हुए इस बात का दावा किया है कि उनको हुजूराबाद की अवाम पर मुकम्मल एतमाद है और ये जिस तरह मुझको 4 मरतबे मुंतखब किए, मुस्तकबिल में भी उनकी खिदमत को देखते हुए कामयाब करेंगे। उन्होंने रियासती वजीर जी कमलाकर की जानिब से उनके हामियों को दी जाने वाली धमकियों की सख्त मजम्मत करते हुए बताया कि मैं और मेरे हामी किसी भी किस्म की धमकियों से खौफ खाने वाले नहीं हैं। उन्होंने बताया कि 2023 के इंतखाबात के बाद करीमनगर इंचार्ज वजीर का नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। ब्लैक मेलिंग पाल्पड़ते तప్పకుండా రాబోయే నువ్వేం 2023 తర్వాత ఉండటం కాదు, గుర్తుపెట్టుకో। 2023 తర్వాత నువ్వు ఉండవు, నీ అధికారం ఉండదు। నీవు ఇప్పుడు ఏం పని అది చేస్తున్నావో ఆ పని తప్పకుండా చేస్తానని చెప్పి హెచ్చరిస్తా ఉన్నా। మర్యాదగా బిహేవ్ చేసే ప్రయత్నం చేయి। నీ కల్చర్ ఏందో, నీ సాంప్రదాయం ఏందో, నీ పని విధానం ఏందో యావత్ తెలంగాణ ప్రజానికని తెలుసు తప్ప ఇలా మా మీద కనుక ఉచితనంతో చేస్తే కనుక ఖబర్దారని చెప్పి హెచ్చరిస్తా ఉన్నా। నేను మా ప్రజలు 20 ఏళ్ళుగా నన్ను గుండెలో పెట్టుకున్నారు వాళ్ళు। నేను దేవుళ్ళను మొక్కను, మా ప్రజలను మొక్కుతాను। నేను దేవుళ్ళ కంటే కూడా మా హుజురాబాద్ నియోజకవర్గ ప్రజలను మొక్కుకుంటా। మా హుజురాబాద్ నియోజకవర్గ ప్రజల హృదయాలనే నేను గుళ్ళుగా భావిస్తాను। నేను ధర్మాన్ని మొక్కుతాను, న్యాయాన్ని మొక్కుతాను। ఎక్కడైనా ఆపద ఉంటే ఆపదలో మనిషిని ఆదుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తే తప్ప నేను ఇంకోటి చేయను। ఇవాళ మా ప్రజలు 20 ఏళ్ళుగా మేము ఒక కుటుంబ సభ్యుల్లాగా కలిసిమెలిసిన మా ప్రజల మీద ఇలా रियासती वजीर जी कमलाकर ने मीडिया से बात करते हुए इटला राजेंद्र को इस बात का चैलेंज किया है कि अगर उनमें हिम्मत है तो असेंबली की रुकनियत से इस्तीफा पेश करें। इसके बाद खुद ब खुद ये वाज़ेह हो जाएगा कि सियासत में किसका नामो निशान मिट जाएगा। जी कमलाकर ने बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने इटला राजेंद्र की जानिब से की गई अराजियात पर कब्जे की तहकीकात की हिदायत देते हुए उन्हें वजारत से बरतरफ कर दिया। इटला राजेंद्र हमेशा इज्जत नफ्स की बात करते हैं। अगर उनके पास इज्जत नफ्स है तो फौरी उन्हें असेंबली की रुकनियत से इस्तीफा पेश करना चाहिए। అసైన్మెంట్ భూమి ఉన్నదని తెలిసి అసైన్మెంట్ ల్యాండ్ అని ఉన్నా కూడా కొన్నవు, నువ్వు శిక్షార్హును నువ్వే ఒప్పుకున్నావు। మరి ఒక మంత్రిగా ఉండి ఒక ప్రభుత్వంలో ఉండి రెవెన్యూ రికార్డ్స్ అసైన్మెంట్ అని ఉన్నా కూడా కొన్న తర్వాత ఏ ముఖ్యమంత్రి కానీ చట్టపరంగా డెఫినెట్ చర్యలు తీసుకుంటే బాధ్యత ఉన్నది వారి మీద। లేకపోతే నీ బాధ అంతా నువ్వు చేసే తప్పులన్నీ కూడా ప్రభుత్వం చుట్టుకునే అవకాశం ఉంది కూడా డెఫినెట్గా ముఖ్యమంత్రి బర్తరఫ్ చేసిండు, అది వాస్తవం। ముఖ్యమంత్రి గారు బర్తరఫ్ చేసిన తర్వాత ఆ రోజు ప్రెస్ మీట్లు ఏమన్నావు, హుజురాబాద్కి వెళ్తాను, నా ప్రజలు కలుసుకుంటాను, పదవుల కోసము పెదవులు ముయ్యడు ఆత్మగౌరవం ఉన్నాము అని చెప్పేసి రాజీనామా చేయవలసి వస్తుందని చెప్పి మీరే అన్నావు। మేము అనలే, మేము డిమాండ్ చేయలేదు, నువ్వే రాజీనామా చేస్తా అన్నావు। తప్పు ఏంది, ఎవరు కూడా రాజీనామా చేయరు। చేస్తాను, హుజురాబాద్కి వచ్చినావు, హుజురాబాద్కి వచ్చిన తర్వాత రాజీనామా చేస్తాను ఆశించారు, రాజీనామా చేయలేదు। హైదరాబాద్ నగరం వెళ్తాము, నా సంబంధికులు ఉన్నారు, నా బీసీ వ్యవస్థ, బీసీ బిడ్డలు అందరూ ఉంటారు, వాళ్ళని అడిగి నేను రాజీనామా చేస్తా అంటివి। హైదరాబాద్ పోయి ఒక బీసీ నాయకుని కలిసిన పరిస్థితి లేదు, ఎవరిని కలిసినావు నీ భగవంతుని పత్రికలు తెలుసు, లోకాలు తెలుసు। కాంగ్రెస్ మెట్టెక్కినావు, బీజేపీ మెట్టెక్కినావు, ఎక్కడ అవకాశం రాలేదు, అక్కడ రాజీనామా చేస్తాను, అక్కడ రాజీనామా చేయలేదు। మళ్ళీ ఈరోజు హుజురాబాద్కి వచ్చినావు, ఈరోజు హుజురాబాద్కి వచ్చి రాజీనామా చేస్తాను అనుకున్నావు, ఈరోజు రాజీనామా చేసి రిప్లై ఇస్తే ఇప్పుడు మీకు
टीआरएस के रुकन पार्लियामेंट महबूबाबाद एम कविता ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से महबूबाबाद में मेडिकल कॉलेज कायम करने की मंजूरी पर मसर्रत का इजहार करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर करते हुए बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने उनकी इंतखाबी मुहिम के दौरान महबूबाबाद की आवाम से वादे किया था कि महबूबाबाद में मेडिकल कॉलेज कायम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज के क़याम से न सिर्फ ज़िले की तरक्की होगी बल्कि यहाँ के तलबा अपने मुकाम पर रहते हुए डॉक्टर बनेंगे। टीआरएस की रुकने कानून साज काउंसिल के कविता ने ट्वीट करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से जगत्याल में मेडिकल कॉलेज के क़याम को मंजूरी देने पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव से दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि वजीर आला ने 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात में जगत्याल में मेडिकल कॉलेज कायम करने का वादा किया था और उसे उन्होंने पूरा कर दिया। दूसरी जानिब जगत्याल जिले में मेडिकल कॉलेज कायम करने के ऐलान पर खुशियां मनाते हुए टीआरएस कायदीन ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव और के कविता की फोटोओं को दूध से नहलाया और आपस में एक दूसरे को मुबारकबादी और वजीर आला से इजहार तशक्कुर किया। मुत्तहदा रियासत आंध्र प्रदेश की साबिक वजीर और सीनियर कांग्रेस कायद गीता रेड्डी और उनके शौहर रामचंद्र रेड्डी कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए। बुखार की शिकायत पर उन्होंने एहतियाती तौर पर पीर के दिन कोरोना के टेस्ट करवाए थे। रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस वक्त कांग्रेस कायद और उनके शौहर होम आइसोलेशन में हैं। कांग्रेस रुकन असेंबली सीताक्का और सदर एनएसयूआई वेंकट ने शादनगर में कोरोना के मुतासर अफराद की मदद के लिए मुफ्त एम्बुलेंस और हाइड्रोक्लोराइड सफाई की गाड़ी को झंडी बताकर रवाना किया। इस मौके पर कांग्रेसी रुकन असेंबली सीताक्का और वेंकट ने खिताब करते हुए बताया कि सदर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सोनिया गांधी की हिदायत पर कोरोना से मुतासर अफराद की मदद के लिए हम मुसलसिल मसरूफ़ हैं और कई रोज़ से मुफ्त खाना तकसीम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। वेंकट ने बताया कि एनएसयूआई की जानिब से अनक़रीब हर ज़िले में मुफ्त एम्बुलेंस फराहम करने के इक़दाम किए जाएंगे। ఏదైతే కరోనా సంబంధించి రోజు రోజుకి ప్రజలు అంబులెన్స్ సర్వీస్ లేక ఇబ్బంది పడుతున్న సంఘటనలు మనం చూస్తున్నాము। అందుకే మా యొక్క ఏఐసిసి పిలుపు మేరకు ఈరోజు ఎన్ఎస్యూ ఆధ్వర్యంలో షాద్నగర్లో మా సోదరుడు దినేష్ సాగర్ గారు ఉచిత అంబులెన్స్ సర్వీస్ని ప్రారంభించారు। దానికి అతిథిగా సీతక్క గారు రావడం జరిగింది। రానున్న రోజుల్లో ఇదే విధంగా అంబులెన్స్ సర్వీస్ యావత్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రతి జిల్లా వ్యాప్తిగా ఎన్ఎస్ఐ ముందుకు వస్తుంది। ఎందుకంటే కనీసము ఒక విద్యార్థి విభాగం మేము అంబులెన్స్ సర్వీసే ప్రొవైడ్ చేస్తామన్న ప్రభుత్వానికి బుద్ధి వచ్చి వారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉచిత అంబులెన్స్ సర్వీస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తారని చెప్పి కార్యక్రమం తీసుకోవడం జరిగింది। మరొకసారి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మున్పు ఎమ్మెల్యే సీతక్క గారికి ఎన్ఎస్ఐ తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తాను। సహకారంతో ఎన్ఎస్ఎస్ స్టూడెంట్స్ అంతా కూడా మరి ఈరోజు ఇక్కడ షాద్నగర్లో ఉచిత అంబులెన్స్ సర్వీసులను ప్రారంభిస్తూ మరి ప్రజలకు సేవ చేయాలన్నటువంటి గొప్ప సంకల్పంతో ముందుకొచ్చినందుకు వారిని ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తా ఉన్నాను। అదేవిధంగా సోదరుడు ఎన్ఎస్సిఐ స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ వల్మూరు వెంకట్ గారు, రంగారెడ్డి జిల్లా ఎన్ఎస్సి అధ్యక్షులు గారు, అదేవిధంగా ఇతర ఎన్ఎస్సిఎస్ సోదరులకు అందరికీ, పత్రికా మీడియా సోదరులకు పేరు పేరున హృదయపూర్వక నమస్కారాలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను।
ఎప్పుడు దేశంలో ప్రజలకు ఆపద వచ్చినా కష్టం వచ్చినా కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళ కన్నీళ్లు చూడడం కోసం వాళ్ళకు అందుబాటులో ఉండి చేతనైనంత ప్రభుత్వంలో ఉన్న संगारेड्डी के रुकन असम्बली टी जग्गारेड्डी ने संगारेड्डी में एक अरसे से मेडिकल कॉलेज के क़याम के लिए जद्दोजहद जारी रखे हुए थी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने असम्बली में संगारेड्डी में मेडिकल कॉलेज के क़याम का तयख़ुन देने के बावजूद एक अरसे से कॉलेज तातुल का शिकार था, लेकिन जग्गारेड्डी जद्दोजहद जारी रखते हुए चीफ मिनिस्टर को असम्बली में दिए गए तयख़ुन को याद दिलाते रहे। संगारेड्डी में मेडिकल कॉलेज के चीफ मिनिस्टर के ऐलान के बाद जग्गारेड्डी ने चीफ मिनिस्टर से इजहार तशक्कुर किया। जग्गारेड्डी की जद्दोजहद मेडिकल कॉलेज को हासिल करने में कामयाब रही। कमिश्नर पुलिस साउथ जोन टास्क फोर्स ने गैर कानूनी तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन कोविफर को ज़रूरतमंद लोगों को ब्लैक में बेचने के इल्ज़ाम में 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। तफसीलात के मुताबिक भुवनगिर का रहने वाला किरण कुमार मेडिकल एजेंसी चला रहा था। उसने आसानी से पैसा कमाने के लिए रेमडेसिविर को ब्लैक में बेचने का मंसूबा बनाया। उसने अपने जानने वालों से इंजेक्शन हासिल किया और मोहम्मद खालिद नामी एक शख्स से रब्त पैदा किया जो उस्मानिया दवाखाने में सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है। उसको किरण ने बताया कि उसके पास रेमडेसिविर इंजेक्शन है। चुनाचे वो खालिद को इंजेक्शन सप्लाई करने लगा और खालिद ज़रूरतमंद मरीजों को 30 से 35 हज़ार में इंजेक्शन बेचने लगा। 17 मई को एक मुस्तनद इत्तला पाकर साउथ जोन टास्क फोर्स ने करण और मोहम्मद खालिद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 5 रेमडेसिविर बरामद किए और दोनों को मैं इंजेक्शन अफजलगंज पुलिस स्टेशन के हवाले किया। शौहर से फ़ोन पर बात करने के बाद बरहम एक खातून ने अपने दोनों बच्चों का गला काटकर कत्ल कर दिया। यह वहशायाना वारदात रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले प्रकाशम में पेश आई। 25 साल खातून आदि लक्ष्मी जिसका नाम है, उसकी शादी 5 साल कबल एक शख्स से हुई थी। शौहर बीवी में अक्सर झगड़े हो रहे थे, जिसकी वजह से खातून अपने दोनों बच्चों जिनकी उम्रें 3 साल और 1 साल बताई गई है को लेकर मायके मुंतकिल हो गई थी। कल उसने अपने शौहर से फ़ोन पर बात की, जिस पर शौहर ने गाली गलौज की और खातून इससे बरहम हो गई। उसने फ़ोन रखने के बाद अपने दोनों बच्चों का गला काट कर कत्ल कर दिया और उसके बाद खुदकशी की कोशिश की। खातून के बच्चों की मौत हो गई, जबकि उस खातून को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। तूफान की वजह से सुबह 6 बजे से हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हुई। सुबह के औकात में बारिश से आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ा। महकमे मौसमियात ने बारिश की कबल वक्त पेश क़यासी की थी। रियासत में कोरोना के इंसदाद के लिए हुकूमत ने लॉकडाउन नाफिज किया। 4 घंटों की नरमी सुबह 6 से 10 बजे तक दी गई। लॉकडाउन में नरमी के औकात के साथ बारिश का सिलसिला भी शुरू हुआ, जिसकी वजह से कारोबारी अफराद, दीगर कामों पर जाने वाले अफराद, दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर के साथ नए शहर में बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया। जीएचएमसी मेयर ने दौरा करते हुए पानी की निकासी के लिए हिदायत दी। मेयर ने ईएनटी हॉस्पिटल कोटी का दौरा जोनल कमिश्नर जीएचएमसी के साथ किया। शहर के एलबी नगर और सरूर नगर में भारी मकदार में पानी जमा हो गया था।
महकमे सेहत की जारी तफसीलात के मुताबिक रियासत में 24 घंटों में 3,961 कोरोना के नए केसेस सामने आए हैं। ग्रेटर हैदराबाद में 631 नए केसेस दर्ज हुए हैं। तेलंगाना में कोरोना के केसों में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी है। इसके अलावा अमवात में भी कमी आई है। 24 घंटों में 30 अमवात हुई हैं, जिससे मजमूई तादाद 2,985 हो चुकी है। रियासत में अब तक के कोरोना केसों की तादाद 5,32,784 दर्ज हुई है। 5,559 अफराद सेहतियाब हुए हैं। मजीद 49,341 अफराद जेर इलाज हैं। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में कोरोना की लहर जारी है। 24 घंटों में 18,561 नए केसेस दर्ज हुए हैं। 109 अफराद की 24 घंटों में मौत वाक़ हुई है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसों में कमी और अमवात में इजाफा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में रिकॉर्ड अमवात दर्ज हुई हैं। मरकजी वजारत सेहत ने मंगल के रोज़ ऐलान किया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 4,329 अफराद फौत हो गए हैं। एक दिन में मुल्क में 2.63 लाख अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं। मुल्क में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2.5 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। मुल्क में कुल 2,78,00,000 अफराद कोरोना की वजह से 2,78,000 अफराद कोरोना की वजह से फौत हो गए। कोरोना मुस्बित केस की शरह 14.09% है। मुल्क में कुल 33 लाख कोरोना के मरीज जेर इलाज हैं। कोरोना से 4,22,436 मरीज सेहतियाब भी हुए हैं। रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर का असर बच्चों पर ज्यादा रहेगा। हमें चौकस रहने की ज़रूरत है। बच्चों के वालिदैन ज़रूर टीका लें। नर्सिंग के अमले में इजाफा और उन्हें तरबियत देने की ज़रूरत है। बच्चों को मेयारी इलाज की सहूलियात हुकूमत फराहम करने के लिए लाहेमल तैयार करते हुए उस पर अमल करें। बच्चों को बचाना हमारा फ़र्ज़ है, रेवंत रेड्डी ने कहा। आखिरी सफ़र यानी आखिरी रसूमात के लिए गुरबा के लिए करीमनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने स्कीम शुरू की है। सिर्फ ₹1 में आखिरी रसूमात स्कीम के तहत नाश को शमशान घाट लाने और उन्हें नजर आतिश करने के लिए लकड़ी, कवरसिन, दीगर ज़रूरी अशिया करीमनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फराहम करेगा। दीगर मज़ाहिब की नाशों को आखिरी रसूमात के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने इंतज़ामात अमल में लाते हुए एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने आखिरी रसूमात के लिए अराजी भी फराहम करी है। यह स्कीम 2019 से अमल में आ चुकी है। आखिरी सफ़र स्कीम से गुरबा इस्तेफादा कर रहे हैं। साबिक़ में खानगी दवाखाने आखिरी रसूमात के लिए भारी रकम वसूल किया करते थे। गुज़िश्ता साल 150 नाशों की आखिरी रसूमात अंजाम दी गई थीं। आखिरी रसूमात के बाद 50 अफराद के खाने के भी इंतज़ामात किए जा रहे हैं। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ ने लॉकडाउन से परेशान अवाम को राहत देने के लिए ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद के 250 अन्नपूर्णा खानों के स्कीम में मज़ीद नरमी लाते हुए मुफ्त खाना फराहम करने की हिदायत जारी की, जिससे अज़ला दूर दराज के अफराद जो कोरोना के मरीज़ों की देखभाल तीमारदारी करते हैं बड़ी राहत मिलेगी। वाज़ेह है कि रुकने पार्लियामेंट ने सिकंदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में 1,000 अफराद को मुफ्त खाने का आगाज़ किया था। दूसरे दिन मुफ्त खाना लेकर जाने वाले रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी को रोक दिया गया था। खाने की मुफ्त सरबराही को मजदूर कर दिया गया था। रेवंत रेड्डी के आगाज़ करदा मुफ्त सरबराही से मुतासिर होकर KT रामाराव ने आज 250 अन्नपूर्णा खाने की स्कीम, जो ₹5 में खाना दिया जाता है, उसको मुफ्त कर दिया है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।